पाकिस्तान में इशू ये है कि जो इसका टेस्ट है, जो इसका प्रॉपर टेस्ट है इसकी डायग्नोसिस के लिए, दैट इज़ नोन एज HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, इट इज़ अवेलेबल ओनली इन मेजर सिटीज़. अब फॉर इंस्टेंस इन KPK इफ़ इट इज़ अवेलेबल इन पेशावर ओनली, तो जो दूर दराज के लोग हैं उनके लिए अगर हमें मैंडेटरी कर देंगे कि जी बिफोर निकाह, और एक हुआ भी था असेंबलीज़ में रेजोल्यूशन पास किए गए. तो थैलेसीमिया के बच्चे जो है बड़े दूर से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चा जो है किसी चीज़ से इफ़ेक्टेड है, वो नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार रहा होता. तो मेरे पेरेंट्स ने जो है मुझे हमेशा नॉर्मल ट्रीट किया. जहाँ पे मुझे लगता भी था कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता ना, तो मेरे फादर ने मुझे कभी भी जो है ना वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं की कि यार ये तुम नहीं कर सकते. उन्होंने मुझे कभी स्पेशल ट्रीट किया ही नहीं. उन्होंने हमेशा मुझे इस तरह ट्रीट किया कि जी मेरा बेटा जो है वो या डॉक्टर बनेगा या वो इंजीनियर बनेगा, वो जिम भी जाएगा, वो अपना हर चीज़ खुद करेगा. Our people, they are working in their own silos, and unfortunately they are not even aware of the existence of other people doing incredible work in other silos. हमें अवेयरनेस इस सोसाइटी में लेकर आनी है कि इसका अगर थैलेसीमिया कैरियर हो तो देयर इज़ नो इशू, दे कैन लीड कंप्लीट हेल्दी लाइफ. दिस इज़ नॉट एन इशू, बट दिस इज इशू ऑल्सो इफ यू डोंट नो. Assalamu alaikum. My name is Dr. Maaz Aslam. I'm the founder of Free Quran Education and Free Medical Education. Alhamdulillah, it's an honor for me that today we have none other than respected Sir Major General Abid Latif Khan Saab with us, and also Hamza Bhai with us, who is also an old and a dear friend of mine. आज जो हम जिस मौजू पे बात करना चाहेंगे, that is a critical issue that's facing our country at the moment, which is that issue of thalassemia, a very avoidable issue. आप सल्लम की एक हदीस मेरे जहन में आती है कि मौत के अलावा हम हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने एक शिफा रखी हुई है. And also an issue that's affecting millions and millions of children in Pakistan. So first of all, sir, it's an honor to have you here, and it's an honor to have you here, Hamza bhai. Respected sir, I'll first of all like you to introduce yourself a bit, and also Hajra Hamza Foundation. What was the inspiration behind it, sir? And how do you think that this foundation can be a game changer in this issue for millions and millions of children suffering from avoidable suffering in Pakistan, sir? Thank you very much, Dr. Saab. I'm obliged, or thank you, and thanks to Hamza also that he introduced me to you and I got this opportunity, because I thought that this is the most important aspect which is neglected, and now we will talk about it in detail. So as far as my personal introduction is concerned, I retired last year from Army as a Major General, having served this institution for more than 37 years. And last year when I retired, so I established this Hajra Hamza Foundation. It is on the name of my own family. My daughter and my son-in-law is sitting right in front of you. And the inspiration of establishing this foundation was that, during my service and because of this disease in my family, back in 1994 when, we came to know about this thalassemia, when Hajra was born, thereafter we came to know that this is something, very serious, and now it's for lifelong. She will have to be dependent on blood transfusions. So thereafter we came to know about ourselves also, and we got ourselves screened, and then the extended family also, and we came to know this is thalassemia carrier, and because of us that it's transferred in our next generations. So during my service I saw that nothing especially at the government level is being done, and since it is a preventable disease, so I thought that I will establish a foundation, and primarily I will work for prevention of this disease. So this was the more, and my mission is also eradication of this disease from Pakistan, and that's why we have given a slogan for our foundation, that is Thalassemia Free Pakistan. Although we have also established a thalassemia center in Abbottabad, because there's not only I would say that because it's my hometown, but otherwise also in complete Hazara division there was no such kind of facility
because the percentage of thalassemia is quite high there, the frequency. But they either would go to take their children to Peshawar or to Islamabad for transfusion, etc. So we have established last year in June, and within these 11 months, we have now more than 215 children who are dependent on that foundation and that thalassemia center. So this is, brief introduction of myself and the foundation. Hamza bhai, would you like to introduce yourself briefly, and would you like to add something, and then we can get into the questioning as well, inshallah. हम इसको साथ साथ फिर उसके in depth चले जाते हैं इसमें. सर सबसे पहले तो ये कि मैं माई सेल्फ मेजर थैलेसीमिया पेशेंट। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम जो है अपनी लाइफ बड़ी अच्छी गुजार रहे हैं, मी एंड माई वाइफ हाजरा। लेकिन थैलेसीमिया जो है हमारे मुल्क में, हालांकि इट इज़ अ प्रिवेंटेबल डिज़ीज़, लेकिन दुख की बात ये है कि ये अभी भी बढ़ रही है। तो प्रिवेंशन और इसकी अवेयरनेस जो है हमारे लिए जो है बड़ी इसकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम अल्लाह का शुक्र है एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि एक तो बहुत सारे बच्चे जो इस डिज़ीज़ से सफ़र कर रहे हैं उनको भी इस चीज़ से निकाला जाए, उनको ज़रा बेहतर लाइफस्टाइल की तरफ ले जाया जाए, उनकी मेडिकेशन के एक्सपेंसेस, उनकी ब्लड के लिए जो स्ट्रगल होता है उसको आसानी की जाए। दूसरा ये कि इस डिज़ीज़ को, क्योंकि प्रिवेंटेबल है, इसको हम रोकें, बजाय कि ये हमारे मुल्क में बढ़ती जाए। हमें इस चीज़ की एफ़र्ट करनी चाहिए कि इसको हम जो है किसी तरह कम करने की कोशिश करें। तो उसमें जो है अगेन आपकी भी हम हेल्प ले रहे हैं। हम चाहते हैं गवर्नमेंट भी जो है इस चीज़ में हमें साथ दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें, और इसकी जो प्रिवेंशन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ब्लड टेस्ट, एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट किया जाता है जिसकी वजह से इस चीज़ को रोका जा सकता है। तो उसमें हम ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा हेल्प होगी तो उतना इंशाल्लाह इसमें जो है ना आसानी हो जाएगी सब काम में। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन होगा इसमें कि वन ऑफ इट्स क्यूर्स इज़ अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट। मैं सर इसमें कॉस्टिंग देख रहा था कि एक बच्चे पे इट्स ऑलमोस्ट 3,60,000 रुपीज़ पर ईयर। अगर आप एक शख्स पे मतलब पर मंथ देखें तो वो इट्स 30,000 रुपीज़ पर मंथ। इसमें सर वन ऑफ माई फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट फॉर अ चाइल्ड सर? अगर एक बच्चे का लें सर तो वो अंदाज़न कितनी होती है सर? देखें, बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है ना पाकिस्तान में इट्स अराउंड 4 to 5 million rupees. ठीक है। But we have a few of the, there are approximately 12 to 13 bone marrow transplant centers in Pakistan, and mostly in private sector, very few in public sector, and everywhere it is like this. But there are few exceptions, like here in Rawalpindi there is one Pathwell and bone marrow transplant center. This is again a charity based thalassemia center where they have established. General Pervez, he retired from and General Shoaib, both of these they established that. तो यहाँ पे ये ले रहे हैं अराउंड, इसकी कॉस्ट जो है ना अराउंड 2.2 से 2.45 मिलियन, यानी 22 लाख से 25 लाख में। इसके अंदर भी इनका एक अच्छा इनकी MOU हुआ है, एक अंडरस्टैंडिंग है विद बैतुल माल। सो अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 lakh rupees is funded by Baitul Mal, and rest is from their own society, as well as if the others they contribute. There are other charitable organizations, they are also helping in that. So ये एक है जो कि अभी 3 साल हुए हैं बने। बट मैं यही तो कह रहा हूँ कि द एक्चुअल इशू इज़ कि इसकी हमें, ये तो एक क्योर है, इसका परमानेंट क्योर है, और उस क्योर के लिए एक तो कॉस्टली है, दूसरा इसका आपको पता है कि जो इसका जो मैच है 100% मैच मिलना भी काफ़ी मुश्किल होता है। इट कुड ओनली बी पॉसिबल फ्रॉम द मोस्ट लाइकली सिबलिंग से ही हो सकता है। तो वो भी बड़ा रेयर होता है, कई दफ़ा हमारे यहाँ मैच ही नहीं हो पाता, तो इसलिए, और फिर विद द एज इसके रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो द ओनली पॉसिबल थिंग एट एवरी लेवल इज़ प्रिवेंशन। तो हमें प्रिवेंशन के लिए काम करना है। ऑल्दो कि जो हम इसकी मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, अभी देर आर अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तान में 70 to 80 थैलेसेमिया सेंटर्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने बनाए हुए हैं, जो कि चैरिटी बेस्ड हैं ऑल। वहाँ पे इन थैलेसेमिया मेजर के बच्चों के लिए मैनेजमेंट होती है, केयर होता है, एंड इट इज़ ओनली इन टर्म्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। दैट अगेन इज़ नॉट
एज रिक्वायर्ड बाय देम, उतनी हम परसेंटेज, क्योंकि ब्लड की इतनी कलेक्शन ही नहीं हो पाती, सो जितना उनको रिक्वायर्ड होता है वो भी नहीं हो सकता. एंड देन अगेन इट इज़, एक बच्चे की सिर्फ मैनेजमेंट के लिए अप्रॉक्सीमेटली 30,000 रुपीज़ हैं जो कि पर मंथ उसकी कॉस्ट आती है, जिसमें उसको ब्लड भी लगना है और जिसमें कई दफ़ा 2 दफ़ा ब्लड लगना पड़ता है और कई दफ़ा और साथ उसके जो एसोसिएटेड मेडिसिन है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव. तो उसकी शॉर्टेज ऑफ फंड्स की वजह से और शॉर्टेज ऑफ ब्लड की वजह से ये इनकी मैनेजमेंट भी सही नहीं हो पाती, और इसीलिए पाकिस्तान में थैलेसीमिया मेजर के जो बच्चे हैं उनकी एवरेज एज इज़ अराउंड 15 to 16 ईयर्स. तो हम दैट्स फिर जो क्योर की बात हमने कर ली कि वो भी बड़ा एक्सपेंसिव है एंड देयर आर वेरी फ्यू सेंटर्स. सो देयरफॉर ऑल द मोर रीज़न वी मस्ट गो फॉर प्रिवेंशन, और प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है अवेयरनेस एंड गवर्नमेंट लेवल के ऊपर. पाकिस्तान इज़ परहैप्स ओनली कंट्री जिसमें भी ज़्यादा रेशियो है जिसके अंदर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कोई सेंट्रल रजिस्ट्री भी नहीं है और कोई सेंट्रल प्रिवेंशन प्रोग्राम इज़ नॉट इन प्लेस, नाइदर हेयर इन फेडरल गवर्नमेंट नॉर इन द प्रोविंसेस. पंजाब में एक देयर इज़ वन इन प्लेस सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स एंड दे आर डूइंग ऑल राइट नाउ. अभी काफ़ी बेहतर काम हो रहा है जिसकी वजह से अवेयरनेस भी है और उसके लिए प्रिवेंशन पे काम कर रहे हैं. बट इन सिंध, इन KPK एंड इन बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर GB वगैरह में देयर इज़ हार्डली एनीथिंग बीइंग डन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड. सर इसमें एक क्वेश्चन, जो क्विक क्वेश्चन आता है कि वन ऑफ द व्हेन वी वर इन स्टूडेंट लाइफ, तो वन ऑफ द वेरी रेडिकल ऑप्शंस दे वर कंसिडरिंग वाज कि हम क्यों ना नेशनल ID कार्ड में इसको इंक्लूड कर दें. जिस तरह आपके सर ड्राइविंग लाइसेंस में ब्लड टाइप आपका लिखा होता है, तो अगर ID कार्ड में ये चीज़ आ जाए तो इट विल कॉस्ट लाइक 1500 to 1000 रुपीज़ टू स्क्रीन अ चाइल्ड, अगर हम कॉस्ट प्राइस पे बात करें, और उसको ID कार्ड पे ही ऐड हो जाए कि ही इज़ अ थैलेसीमिया कैरियर और नॉट. अच्छा, उसमें फिर सर ये भी चैलेंजेस थे कि ज़रा देयर इज़ अ स्टिग्मा एसोसिएटेड कि आपकी एक ID, यू आर कैरिंग एन ID कार्ड विद दिस रिटन ऑन इट एक्सेट्रा. बट इफ़ वी कैन डू दिस प्रोपोजिशन, तो उस वक्त ये सोचा जाता था कि इन सम कंट्रीज इट्स इंक्लूडेड, यानी उधर बिफोर मैरिज और बिफोर दिस यू हैव टू हैव दीज टेस्ट डन. सर डू यू थिंक दिस इज़ अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन? जी, आपको पता है कि ये इस बीमारी का जो ओरिजिन जहाँ से हुआ, ओरिजिन से मुराद है कि जहाँ पे डिस्कवरी हुई इसकी अर्ली 19th सेंचुरी में, दैट वाज दिस सदर्न मेडिटेरेनियन बेसन. ये जो यूरोप के हैं, साइप्रस, ग्रीस, इटली, सार्डिनिया वगैरह, इन कंट्रीज, वहाँ पे उस डिस्कवरी के बाद दे वर्कड ऑन दिस प्रिवेंशन एंड नाउ इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, दे हैव एलिमिनेटेड इट बिकॉज ऑफ दैट मेयर्स. अब इन मेयर्स में जहाँ तक ये है ना कि जी बिफोर मैरिज इट शुड बी मैंडेटरी, पाकिस्तान में इशू ये है कि जो इसका टेस्ट है, जो इसका प्रॉपर टेस्ट है इसकी डायग्नोसिस के लिए, दैट इज़ नोन एज HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, इट इज़ अवेलेबल ओनली इन मेजर सिटीज़. अब फॉर इंस्टेंस इन KPK इफ़ इट इज़ अवेलेबल इन पेशावर ओनली, तो जो दूर दराज के लोग हैं उनके लिए अगर हमें मैंडेटरी कर देंगे कि जी बिफोर निकाह, और एक हुआ भी था असेंबलीज में, रेजोल्यूशन पास किए गए कि, और यहाँ तक कहा गया कि जी जितने निकाह ख़वान हैं वो उस वक्त तक निकाह में अंदराज नहीं करेंगे जब तक ये टेस्ट वो लेकर नहीं आएंगे. तो इट वॉज नॉट पॉसिबल, इट वॉज नॉट नेवर इम्प्लीमेंटेबल लॉ, बिकॉज वज़ीरिस्तान का अगर एक फैमिली है उसने शादी करनी है तो वो कैसे जाके पेशावर में टेस्ट कर सकते हैं. पेशावर तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि ये चीज़ें आप अवेलेबल करें डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल्स में और तहसील हेडकोार्टर हॉस्पिटल्स में जाके, ताकि लोगों के लिए ईजीली एक्सेसिबल हो ये टेस्ट. 1, 2 ये है कि हमने जो इसकी कोई रजिस्ट्री नहीं है, हमारे पास कोई डाटा नहीं है कि थैलेसीमिया मेजर के कितने इस वक्त बच्चे हैं. उन्हीं से फिर हम आगे जा सकते हैं, उनकी फैमिलीज़ और उनकी एक्सटेंडेड फैमिलीज़ की स्क्रीनिंग करें तो वी वुड एग्जैक्टली कम टू नो कि थैलेसीमिया कैरियर का प्रिवेलेंस रेशो क्या है और किस इलाके में कितना है. चंद स्टडीज़ हुई हैं जिसके मुताबिक हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान में 5 to 8% प्रिवेलेंस है, बट दिस इज़ ऑल रॉ डाटा. अगर 5 to 8% हम करें, अगर 7% भी आप करें कैरियर, तो इट मीन्स कि इस वक्त पाकिस्तान में 17 मिलियन लोग जो है ना वो दे आर कैरियर्स. Where are they? We don't know. Nobody knows. साइप्रस में उन्होंने किसी टाइम फ्रेम में ये मैंडेटरी किया था कि जी जब वो सोलेमनाइजेशन के लिए, मैरिज के लिए आते हैं
उसमें ये जो पादरी के सामने, तो वो कहेगा कि जी आप बताएंगे आपने वो टेस्ट कराया कि नहीं। वो फिर बाद में जब उन्होंने यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना था तो वो दैट वाज डिसअलाउड एंड दे डिसकाउंटेड बिकॉज दैट दे सेड इट्स अगेंस्ट बेसिक ह्यूमन राइट्स, दैट्स वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो पाकिस्तान में भी इस तरह का लॉ नहीं बन सकता। येस यू आर राइट कि अगर हम नादरा के थ्रू बर्थ जब हो जाती है, बर्थ की आपको पता है कि हर बर्थ की आपने रजिस्ट्री करानी है, इट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड नादरा के। तो उस टाइम पे जब आपने बाकी जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है कि ये इंजेक्शन लगने हैं, ये होना है, हेपेटाइटिस बी के, सी के, उसी में एक ये कर दें कि जी HB इलेक्ट्रोफोरेसिस भी करवाना मैंडेटरी है, बच्चे को शुरू से ही पता चल जाएगा कि ये है। बट एट द सेम टाइम ये जो आपने स्टिग्माइजेशन वाली बात की, हमें अवेयरनेस इस सोसाइटी में लेकर आनी है कि इसका अगर थैलेसीमिया कैरियर हो तो देयर इज़ नो इशू, दे कैन लीड कंप्लीट हेल्दी लाइफ। This is not an issue, but this is an issue also if you don't know. The problem is that thalassemia carrier itself is no issue. The issue is if you don't know that you are thalassemia carrier. As we were not in knowledge before 1994. And when, हमारी फैमिली में जब हमारे यहाँ बच्ची की पैदाइश हुई तो तब हमें पता चला। तो हम ये चाहते हैं कि लोगों को ये पता चल जाए और वो ये करें। अच्छा, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि जब तक ये टेस्ट हम हर जगह पे अवेलेबल नहीं कर सकते HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो कम से कम हम अपने जो मेडिकल के जो लोग हैं, जो पैरामेडिक्स हैं, जो लेडी हेल्थ वर्कर्स जो होती हैं, हमारी वॉलंटियर्स जो हैं हर गांव में, और ये वो पोलियो की टीम्स होती हैं, उनको एजुकेट करें कि ये है क्या। और अगर जहाँ पे हमारे आगे छोटे बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, वहाँ पे हम सिर्फ एक नॉर्मल जो ब्लड की वो CBC होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट जो है, उससे भी अगर उसका पता चल सकता है कि अगर उसके HP इज़ बिलो नॉर्मल लेवल, तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। तो या तो उसको एनीमिया है या फिर कोई और, तो उसके बाद फिर वो उसको रिकमेंड कर सकते हैं कि। और स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमेन जाती हैं, जिस जगह पे भी जाएं, जिस हॉस्पिटल में भी जाएं, किसी बेसिक हेल्थ यूनिट में जाएं या लेडी हेल्थ वर्कर उनके पास जाती है, तो वो उनका HB ज़रूर करवाए और उससे उसको अंदाज़ा हो सकता है कि जी इसमें इसका अगर कम है तो इसको फर्दर HB की स्टडीज़ करानी चाहिए, तो वो फिर उससे पता चल जाएगा। एंड देन फिर उसकी जेनेटिक काउंसलिंग। और आपको पता है कि अगर आवर मेन टारगेट शुड बी प्रेग्नेंट वुमेन, वहीं से इसका प्रिवेंशन का आगाज़ होगा। और फिर उनकी आप CVS जो एक टेस्ट है वो हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा हर जगह पे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 8 to 10 वीक्स या 10 to 12 वीक्स के दरमियान में आप उसका टेस्ट फिटस से वो ले सकते हैं, एंड देन यू कैन सेंड इट टू लैब में, जिससे ना सिर्फ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर बल्कि और भी काफ़ी ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनका पता चल सकता है। सो दैट्स ए लीगल थिंग, दैट्स अलाउड। इवन इस्लामिक उसमें फतवा भी मौजूद है कि बिफोर 16 वीक अगर आप इफ़ इट इज़ डायग्नोज्ड सैंपल से कि देयर इज़ समथिंग सीरियस इस तरह का कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो दे कैन द कपल हैज़ दे शुड बी गिवन दैट चॉइस कि जी आप टर्मिनेट करा सकते हैं इसको, एंड दैट्स अलाउड। उसमें हमारे यहाँ फतवे भी मौजूद है। सर, इसमें वन ऑफ द थिंग्स जो मेरी हमजा भाई से भी बड़ी बात होती रहती है कि लॉट ऑफ टाइम्स our people, they are working in their own silos, and unfortunately they are not even aware of the existence of other people doing incredible work in other silos. मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा कि ये मैंने अपने सामने भी लिखा है। One of the person I would love to meet with you and get connected to you, and she would love it as well as मैम नुज़रत है, उनके नाम पूरा नाम था मैम नुज़रत मुशाहिद। She headed Pakistan Hematologist Association as well, और आर्मी में शायद वो भी ब्रिगेडियर थी, फिर आर्मी से रिटायर हुई, और पाकिस्तान आर्मी का सर जो हेमाटोलॉजी इंस्टीट्यूट था, शी वाज इन इट्स टॉप रैंक्स। आफ्टर रिटायरमेंट शी डिड एन इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ एफर्ट, यानी उन्होंने P1 के नाम से यहाँ पे बहरिया में शी मेड ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि उनका बेटा भी सर ENT में है, तो वो मेरे साथ उसकी कोऑर्डिनेशन होती थी उज़ैर के साथ। तो शी टुक सो मच स्ट्रेस। उन्होंने ये जो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस का आप बता रहे हैं, तो एट दैट टाइम शी वाज एक्सप्लेनिंग टू मी कि ये वाली मशीन इस पूरे रीजन में नहीं है जो मैंने ये ख़रीदी है, मतलब इट वाज अ वेरी एक्सपेंसिव मशीन। एंड देन शी हैड दिस होल आइडिया कि आप ये मशीन बेशक हर जगह ना हो, तो इवन इफ़ वी कैन हैव लाइक दीज
vans containing the specialized iced box, so we can do testing for this entire region if we have this thing over here, etc. एक चीज़ so sir I would like to request is के and we volunteer ourselves के आप among other things sir एक आप once every 3 months people who are doing work in thalassemia, this should be requested, especially those like yourself, Hamza bhai, Ma'am Nuzhat, एक मैंने जमीला सुल्ताना जमीला सुल्ताना फाउंडेशन सर कि they should at least once every 4 months या once every 6 months this should be their key decision makers should be in a single room and they can at least share their learnings and how they can leverage off each other. सर सेकंड सर मैंने आपसे ये चीज़ डिस्कस करनी थी एंड देन हमजा भाई से भी कि फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि अब हेपेटाइटिस है तो ये मेरी मैम नुज़रत वाली बात से जहन में आई कि इन पाकिस्तान 17% ऑफ पीपल हैव हेपेटाइटिस. अच्छा हेपेटाइटिस का भी सर ये है कि इफ़ यू डू नॉट प्रिवेंट इट मतलब हमें वन ऑफ आवर नेशनल एमरजेंसी शुड बी हेपेटाइटिस लाइक 17% ऑफ आवर पॉपुलेशन हैज़ इट. अच्छा we would be successful as a nation if instead of us having to build more liver clinics and liver centers, we have to start to close them down after a decade or 2 decades, etc. So when it comes to prevention, आपके ख्याल में sir, without the government help, is it even doable, sir? आपको क्या? Yes, this is what I am saying. The most important thing is the government, because देखें अब जितना आप नाम ले रहे हैं जितने डॉक्टर नुज़रत एंड यू नो जमीला सुल्ताना फाउंडेशन, देयर आर सो मेनी फाउंडेशन, देयर आर सो मेनी पीपल, दे आर डूइंग ग्रेट जॉब. बट जब तक गवर्नमेंट का अम्ब्रेला नहीं होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू एस्टेब्लिश. देखें आपने शुरू में कहा कि जी आप इसकी थैलेसीमिया, अब सिंस वी आर वर्किंग फॉर थैलेसीमिया तो हम तो यही कहेंगे कि जी दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सबसे पहले गवर्नमेंट ने ये आइडेंटिफाई करना है कि विच डिजीज़ हैज़ द मोस्ट यू नो फाइनेंशियल बर्डन ऑन आर सोसाइटी, ऑन आर इकोनॉमी, किसका साइको सोशल इम्पैक्ट ज़्यादा है. सो उसके बाद ही फिर उसकी वो प्रायोरिटाइजेशन कर सकते हैं. अभी वाई यू नो आर फोकस इज टूवर्ड्स पोलियो, बिकॉज पोलियो अफेक्ट्स द वेस्टर्न कंट्रीज ऑल्सो. इट कैन ट्रेवल देयर, इट कैन गो देयर. हेपेटाइटिस, जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं ये तो उनके लिए भी थ्रेट हैं. सो दैट्स वाई दे फंड ऑल्सो, दे क्वेश्चन ऑल्सो. उसी के ऊपर बेसिस पे उन्होंने काफ़ी चीज़ें आपकी लिंक की हुई होती. बट in case of thalassemia, since it is not an infectious disease, it is a genetic disease, it does not bother, you know, they are not bothered about this thing. I completely agree. So therefore there is hardly any funding from any Western country, from even international donor agencies also. They are not as forthcoming as they are in case of other infectious diseases. So therefore this is our issue, our problem, and government has, and there is nothing, we are not saying कि all together ये एक नया कोई एक महकमा क्रिएट कर दें. there is a फेडरल हेल्थ की मिनिस्ट्री है, उसके अंदर एक सिर्फ एक सेल क्रिएट करना है आपने. इसी तरह हर प्रोविंस में हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसमें एक डीजी हेल्थ है. डीजी हेल्थ के पास सिर्फ आपने एक डेस्क क्रिएट करना है, एक वन मैन के ही शुड. अभी फॉर इंस्टेंस हमने अपने एबटाबाद के आई मेट द अदर डे कमिश्नर एबटाबाद, हज़ारा डिवीज़न का कमिश्नर. सो व्हेन आई एक्सप्लेन्ड हिम ऑल दीज थिंग्स, सो ही इमीडिएटली सेड, ही इनवाइटेड मी, मतलब एक कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुला ली जिसमें उन्होंने डिप्टी कमिश्नर्स अपने सारे डिस्ट्रिक्ट्स के, अपने हेल्थ के डिवीजनल हेल्थ डिपार्टमेंट के और डिस्ट्रिक्ट्स के सारे उन्होंने मीटिंग करी. उन्होंने कहा यार सबसे पहले ये डाटा, व्हाट इज़ द इशू. हर तहसील में मतलब एक डिप्टी कमिश्नर है, आगे असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, तहसीलदार्स हैं, आगे उनके तो यू नो दे हैव एक्सेस टू एवरी हाउस होल्ड. सो उन्होंने कहा ये हम महीने 1.5 महीने में सारा डाटा आपके सामने ले आएंगे, उसके बाद फिर आप डिसाइड कर सकती है. सो गवर्नमेंट हैज़ टू बी यू नो, इसीलिए आपने देखा होगा कि हम हर जगह पे यही कहते हैं कि प्रिवेंशन के लिए और अवेयरनेस के लिए द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ क्रिएटिंग द पॉलिटिकल विल. और वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि इनको जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, दे मस्ट बी एक्सप्लेन्ड दिस. एंड हमने पूरी इसकी मतलब एक अप्रॉक्सीमेशन के साथ एक वर्किंग तो की हुई है कि कितना इसका फाइनेंशियल बर्डन है मुल्क के ऊपर, और इससे कितनी कम परसेंट एक्सपेंसेस के साथ आप प्रिवेंशन प्रोग्राम को इन प्लेस कर सकते हैं. दैट्स नॉट अ बिग डील. Coming to you, Hamza bhai, because
I was explaining to sir as well कि I'm coming from a medical background. तो मेडिकल बैकग्राउंड में ज़रा आपकी हाउस जॉब होती है, आपकी रोटेशंस होती हैं. तो जब भी मैंने थैलेसीमिया के पेशेंट्स को देखा, अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग यू इट हैड एन इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ. इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ. क्योंकि बिफोर मीटिंग यू आई डिड नॉट नो कि एक थैलेसीमिया का पेशेंट, if they're taking care of, if they're taking care of themselves, they can excel so much in all aspects of their lives, in this world, in their thought process about the next world, and how they carry themselves as a businessman, in their ethics, in उनकी बाकी सारी चीज़ों में. तो एक तो I would like to know कि you can take your time कि how did this thing affect you from the get-go, and secondly, how were you able to overcome दिस मेंटल बैरियर और ये सारे जो जैसे आप कहते हैं कि रुकावटें, एंड स्टिल बी एबल टू बी सक्सेसफुल इन सो मैनी डिफरेंट फील्ड्स. अल्हम्दुलिल्लाह. ये अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो ज़ाहिर है अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने एक परफेक्ट बैकग्राउंड भी दे दिया इस चीज़ के लिए. तो ये तो आप क्वेश्चन जो है ना, मतलब कम ही लोग ये सवाल करते हैं. तो थैलेसीमिया के बच्चे जो है बड़े दूर से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चा जो है किसी चीज़ से इफ़ेक्टेड है, वो नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार रहा होता. तो मेरे पेरेंट्स ने जो है मुझे हमेशा नॉर्मल ट्रीट किया. जहाँ पे मुझे लगता भी था कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता ना, तो मेरे फादर ने मुझे कभी भी जो है ना वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं की कि यार ये तुम नहीं कर सकते. उन्होंने मुझे कभी स्पेशल ट्रीट किया ही नहीं. उन्होंने हमेशा मुझे इस तरह ट्रीट किया कि जी मेरा बेटा जो है वो या डॉक्टर बनेगा या वो इंजीनियर बनेगा, वो जिम भी जाएगा, वो अपना हर चीज़ खुद करेगा. तो स्पेशली जब यंग एज में ये डिज़ीज़ जब डायग्नोज हो जाए, तो उस वक्त जो है टाइमली ब्लड लगा लेना, और जो है बाकी जो इसकी होती हैं प्रोसीजर्स, आपने फेरेटिन लेवल को कंट्रोल रखना होता है ब्लड में, जो आयरन लेवल है. फिर ऑब्वियसली ब्लड की कमी की वजह से ओवरऑल बॉडी वीक रहती है, उसको फिर मेंटेन करना, एक्सरसाइज करना, अच्छा फूड लेना, टेकिंग विटामिन्स और कैल्शियम वगैरह. तो इन सब चीज़ों में बिकॉज़ माय फादर इज़ अ डॉक्टर, उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी हेल्प की. आई थिंक ही इज़ द मेन कैरेक्टर जिन्होंने जो है ना मुझे यहाँ तक लेके आए. और हमेशा उन्होंने मुझे यही बताया कि बेटा आप जो भी चाहो ज़िंदगी में वो कर सकते हो. और मेरी स्टडीज़ में मुझे काफ़ी जो है ना वो पुश करते रहते थे कि ये भी आप सब करो. इवेंचुअली खैर मैं बिज़नेस में आ गया, जैसे आपको पता है. तो लेकिन इतना आसान होता नहीं है जितना लगता है. ऑब्वियसली आपको काफ़ी सारी चीज़ों से डील करना पड़ता है. जो इसमें मेजर एक इफ़ेक्ट होता है ना, वो आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस का होता है. अगर तो आप फिज़िकली मतलब देख के नज़र आता है कि यार कोई मसला है, तो आपको लोग नॉर्मल ट्रीट करते नहीं. ना सिर्फ आपको ख़ुद अपने आप पे यकीन होना चाहिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और उसके अलावा ये है कि आपको अगर लोग उस तरीके से जज करना शुरू हो जाते हैं तो फिर वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो ये ऑब्वियसली अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी जो है ना मेहरबानी हमारे पे, मेरे वाइफ पे, कि हम माशाल्लाह बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रहे हैं. लेकिन अभी अगेन थैलेसीमिया का जो बच्चा एक कोई इंसान देखता है और उसको नज़र आता है कि इसके साथ क्या क्या इश्यूज़ हैं, वो उसका हाइट कम रह गई है, उसकी कम्प्लेक्शन डार्क है, वो बच्चा वीक है. जब तक एक आम बंदा जानेगा नहीं कि थैलेसीमिया की मसला क्या है, प्रिवेंट हमने करना किस चीज़ को है, तब तक वो प्रिवेंशन को सीरियस ही नहीं लेगा. तो मैं नेक्स्ट इसी बात पे आना चाह रहा था कि हमने अपनी जो है पब्लिक को अवेयर करना है सबसे पहले कि ये डिज़ीज़ है क्या, यानी आप किस चीज़ को प्रिवेंट करना चाह रहे हैं. थैलेसीमिया इज़ अ ब्लड डिसऑर्डर, जिसमें इसके दो आप समझिए स्टेजेस हैं. एक जो मेन इशू है हमारा, जो मतलब मेन डिज़ीज़ है थैलेसीमिया मेजर जिसको हम कहते हैं, वो बच्चे जो इफ़ेक्टेड होते हैं डिज़ीज़ से, जो एक यंग एज से, बिल्कुल बचपन से ही जो है ब्लड पे डिपेंडेंट होते हैं. और फिर ब्लड लगवाना जो है, अब नॉर्मल एक इंसान समझता है कि जी ब्लड लगवाना जो है वो बस यही काम है, 10-15 दिन बाद ब्लड लगवा लिया, दैट्स इट. ब्लड लगवाना इज़ द ईज़ी पार्ट. उसके बाद आपने जो अपने आप को मेंटेन करना है, एवरी टाइम जब आपको ब्लड लग रहा है, आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा आयरन आ रहा है, उसको फिर आपने जो है रिलीज़ करना है. उसके लिए आपको मेडिकेशन चाहिए, उस मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसमें आपको जो है आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं, उसके लिए आपने कैल्शियम लेनी है, आपने एक्सरसाइज करनी है. तो ये एक आम बंदे को ये सब चीज़ें पता नहीं है. तो हमारे डॉक्टर्स को अवेयर करना पड़ेगा, उन पेरेंट्स को जिनके बच्चों को ऑलरेडी मेजर थैलेसीमिया है. उसके अलावा एक आम इंसान को पता होना चाहिए कि ये डिज़ीज़ क्या है, तो अब उसको फिर समझेगा कि मैं इसको बाकी प्रिवेंट करने की कोशिश भी करूँ.
एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट जो है ना, वो आप मतलब आपकी आने वाली नस्ल को बचा सकता है इस चीज़ से। और उसके लिए हमने लोगों को अवेयर करना है, उनको पता होना चाहिए कि ये डिज़ीज़ क्या है, ये लाइफ लॉन्ग है। ये सिर्फ एक बच्चे के लिए चैलेंज नहीं है, उससे ज़्यादा ये उसके पेरेंट्स के लिए चैलेंज है कि उन्होंने सारी ज़िंदगी जो है ना अपने बच्चे की तकलीफ़ देखनी है, उसको संभालना है। और कम ही होते हैं ऐसे लकी पेरेंट्स जिनके बच्चे जो है एक बड़ी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, ये हम एक एग्जांपल लोगों के लिए बनना चाहते हैं और बन सकते हैं, और हमारी यही ख्वाहिश है कि फर्दर लोग इस चीज़ से इफ़ेक्ट ना हों। So this is just the first ever meetup, but I'm sure it will be the first of many. Inshallah, it will be an honor for us. Sir, एक तो just meeting Hamza bhai, and I'm sure our bhabhi Hajra as well. You both are incredible ambassadors for this entire mission. Alhamdulillah, and having the support of sir, I think ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के सर मैंने तो अपनी लाइफ में देखा अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक अपनी प्लानिंग होती है. When he wants something to get done, he makes sure कि it is done. सर सेकेंडली वी आर एट योर डिस्पोजल सर. लेकिन सर हमारा एनिमेशन स्टूडियो, हमारी मीडिया टीम्स, हमारा मीडिया सारा, एंड अभी सर वो आपसे मज़ीद डिटेल में भी बात होती है आवर नेटवर्क्स, क्योंकि जैसे मैम नुज़रत हैं, लॉट ऑफ दीज पीपल, ऑल ऑफ इट इज़ एट योर डिस्पोजल सर. आपने हमें बताना है कि हमने क्या क्या उसमें करना है सर. एंड सर लास्टली सर मैं एक अपना सर वो शेयर करना चाहूँगा कि जो कॉकलियर इम्प्लांट के बच्चे होते हैं सर, इट्स अ वेरी प्रिवेंटेबल, आपने सर शायद नाम सुना हो कॉकलियर इम्प्लांट सर. ये 2 साल तक अगर इनका डायग्नोसिस हो जाए ना, तो 2 साल में अगर इनको कॉकलियर इम्प्लांट की मशीन लग जाए तो दे कैन लिव अ परफेक्टली नॉर्मल लाइफ. अच्छा, आई सी अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज़ इन द कॉकलियर इम्प्लांट थिंग एंड द थैलेसीमिया इशू. अब होता क्या सर, 2 साल तक क्योंकि एक बच्चा बड़ा क्यूट सा होता है, वो खेल रहा होता है, तो पेरेंट्स को ये नहीं पता चलता कि इसको हेयरिंग का इशू है या नहीं है. अच्छा, वेस्ट में इट्स कंपलसरी कि आपका पैदा होता ही वो बहरा का एक टेस्ट होता है. इट्स अ वेरी इनएक्सपेंसिव टेस्ट. जैसा थैलेसीमिया के इट्स लाइक 1500 रुपीज़ टेस्ट फॉर स्क्रीनिंग, जो हम उसको डिस्कस कर रहे थे. मैक्सिमम 2000 रुपीज़ के हम पता चल जाए कि कैरियर है या नहीं है. अच्छा, फिर क्या होता है सर, मेरे सामने एक फैमिली आई कि दे वर लाइक 5 और 6 बहन भाई थे. ऑल ऑफ देम वर डेफ एक्सेप्ट उनकी जो यंगेस्ट सिस्टर थी. शी वॉज ओनली लाइक 6 months 7 months एट दैट टाइम. सर हमने अल्लाह का शुक्र है वी गॉट टुगेदर, हमने उनका कॉकलियर इम्प्लांट का करवाया, डन थ्रू एन CMH एज वेल. जनरल नुसरत ने उनका किया. नाउ शी इज़ लिविंग अ परफेक्टली नॉर्मल लाइफ. अच्छा सर, अब उसका क्या है कि कॉकलियर इम्प्लांट का भी ये है कि अगर आप प्राइवेटली कराएं तो द सिमिलरिटीज़ दैट आई एम सीइंग कि वो शायद 3 मिलियन 4 मिलियन में हो, लेकिन अगर आप उसको कॉस्ट प्राइस पे ले आएँ तो वो आपको 1 मिलियन में भी हो जाता है सर. तो I saw in that issue, in this issue, and all of these issues के we have so much work to do. जिसमें सर हमें एक लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह भी कहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हम लोगों की ये ड्यूटीज़ लगाई सर. एंड सर वी आर एट योर डिस्पोजल सर. हमारी जितनी फैसिलिटीज़ हैं दे कैन वर्क 24/7. All of it is in-house, so there is no extra resources being incurred to us in this field. और सर फिर हम मज़ीद भी इस पर डिस्कशन करें. तो सर इट्स एन ऑनर फॉर अस टू हैव यू हियर, एंड इट्स एन ऑनर हमजा भाई टू हैव यू हियर. दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी, जस्ट टू लेट यू नो, और फिर इंशाल्लाह वील कंटिन्यू एज वेल.